ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہار میں انڈیا الائنس یعنی مہا گٹھبندھن کی پارٹیوں کو بدترین ہار اور شکست ملنے کے بعد آسام کو لے کر مولانا بدرالدین اجمل نے کانگریس کو سخت پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے سخت وارننگ بھی دے دی ہے کہ اگر کانگریس نے بہار کی طرح یہاں بھی تکبر سے کام لیا، غرور دکھایا، ایٹیٹیوڈ دکھایا تو بہار سے برا انجام کانگریس کا آسام میں ہو سکتا ہے۔ اگر کانگریس چاہتی ہے کہ آسام میں اگلی مرتبہ بی جے پی کی سرکار نہ بنے، یہاں کے لوگوں کو ظلم سے راحت اور نجات ملے، یہاں نفرت آگے نہ بڑھے بلکہ محبت کو فروغ ملے، تمام کمیونٹیز میں اتحاد ہو، ڈیولپمنٹ کا کام ہو، سبھی کو ساتھ لے کر چلنے والی سرکار بنے، تو کانگریس کو اس کے لیے یہاں AIUDF کے ساتھ الائنس کرنا ہوگا، تمام اپوزیشن پارٹیوں کو مل کر چناؤ لڑنا ہوگا۔ اگر کانگریس یہاں مل کر چناؤ نہیں لڑتی ہے تو پھر کانگریس کا یہاں بھی برا انجام ہوگا۔ بہار کا حوالہ اس لیے دیا گیا کیونکہ بہار میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے پوری کوشش کی تھی الائنس کرنے کی، RJD کانگریس کے الائنس کے ساتھ جڑنے کی، گٹھ بندھن میں شامل ہونے کی، لیکن RJD اور کانگریس نے AIMIM کو الائنس میں شامل نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہا گٹھ بندھن کو بہار میں بدترین ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تجزیہ کرنے والے لکھ رہے ہیں کہ اگر مہا گٹھ بندھن میں AIMIM کو RJD اور کانگریس شامل کر لیتی تو اتنی بری ہار نہ ہوتی۔ کئی ایسے MLA ہار گئے، کئی ایسے امیدوار ہار گئے RJD اور کانگریس کے، جہاں پر AIMIM کا امیدوار کھڑا تھا، ان کو اتنا ووٹ ملا، اور اگر RJD کانگریس الائنس میں شامل کر چکی ہوتی تو یہ انجام نہیں ہوتا۔ کچھ جگہیں ایسی تھی بہار میں جہاں AIMIM اور مہا گٹھ بندھن کے امیدوار میں کانٹے کی لڑائی ہو گئی اور BJP یا NDA کے امیدوار کو وہاں پر جیت مل گئی۔ حالانکہ آسام کا معاملہ بہار سے بہت مختلف ہے۔ بہار میں مسلمانوں کی آبادی صرف 18% ہے، اور بہار میں سیمانچل کا جو علاقہ ہے وہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 60-70% ہے۔ کشن گنج میں 70%، ارریہ میں 44%، کٹیہار میں 46%، یا پورنیہ میں 40%۔ یہاں 24 ودھان سبھا کی سیٹیں ہیں، اور 24 ودھان سبھا کی سیٹوں میں 15 سے 16 سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کا ووٹ 50% سے زیادہ ہے۔ مسلمان اپنے دم پر جس کو چاہے MLA بنا سکتا ہے، اور ان میں سے ہی کچھ سیٹوں پر مسلمانوں کا ووٹ 2 جگہ تقسیم ہو گیا، انڈیا الائنس اور AIMIM کے بیچ میں، اور وہاں پر NDA کے امیدوار کو جیت مل گئی۔ بہار کا جو دوسرا علاقہ ہے وہاں مسلمانوں کا ووٹ زیادہ نہیں ہے، لیکن آسام کا جو علاقہ ہے وہاں مسلمانوں کا ووٹ 34% ہے، اور یہ 2011 کے سنسس کے مطابق ہے۔ مسلمانوں کا نام ہٹانے کے لیے، ووٹر لسٹ سے مسلمانوں کا نام کاٹنے کے لیے، مسلمانوں سے ووٹنگ رائٹ چھیننے کے لیے وہاں کی سرکار نے لگاتار کوششیں کی، خواہ ابھی کی BJP سرکار ہو یا پہلے کی کانگریس سرکار وہاں رہی ہو، سبھی نے وہاں مسلمانوں کو بنگلہ دیشی قرار دیا۔ مسلمانوں کے ووٹر لسٹ کے سامنے ڈاؤٹ فل لکھ دیا گیا، مسلمانوں کو ڈی ووٹر کے کیٹیگری میں رکھا گیا، بنگلہ دیشی بتایا گیا۔ اسی سب کے چلتے وہاں NRC لائی گئی، لیکن NRC کی فائنل لسٹ بھی جب آئی تو مسلمانوں کو زیادہ نقصان نہیں ہو سکا، اور پھر بعد میں BJP سرکار اور ان کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا شرما نے NRC کی فائنل لسٹ کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ بہرحال آسام میں تقریباً 50 سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کا انفلوئنس ہے، اور ان سیٹوں کو مسلمان اپنے دم پر جیت سکتا ہے۔ آسام میں پوری ودھان سبھا کی سیٹیں 126 ہے، اور 126 سیٹیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ 126 سیٹوں میں تقریباً 50 سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کے ووٹ سے ہی کسی بھی امیدوار کی ہار یا جیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آسام میں پہلے کانگریس تھی، اس کے بعد کانگریس جب بہت زیادہ مسلمانوں کو نظر انداز کرنے لگی، مسلمانوں کے ایشو کو اس نے اگنور کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے پاس آسام میں کوئی دوسرا پولیٹیکل آپشن بھی نہیں تھا۔ جیسے بہار ہے، کانگریس کی وہاں حکومت تھی جب بھاگلپور فساد ہوا، اور مسلمانوں کو لگا کہ کانگریس ہندوؤں کے ساتھ کھڑی ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، اسی بیچ میں وہاں جنتا پارٹی آئی، پھر RJD بنی، اور مسلمانوں نے کانگریس کو چھوڑ کر لالو پرساد یادو کی پارٹی RJD کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ RJD کی سرکار بن گئی 1990 سے 2005 تک کنٹینیو۔ اسی طرح کا معاملہ UP میں رہا۔ UP میں مسلمان کانگریس کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب کانگریس نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے رائٹس اور حقوق کی کانگریس نے حفاظت نہیں کی، سماجوادی پارٹی بنی اور مسلمان ادھر شفٹ ہو گئے۔ اسی طرح کا معاملہ کئی اور اسٹیٹ کا ہے، لیکن
आसाम में ऐसा मामला नहीं था। आसाम में बीजेपी का कोई वजूद नहीं, मुसलमान बीजेपी के साथ जा भी नहीं सकता। कांग्रेस इकलौती पार्टी थी। आसाम गण परिषद वहाँ की एक रीजनल पार्टी है, लेकिन वो कई मरतबा बीजेपी के साथ अलायंस में रही, तो मुसलमानों ने पहले से ही उसको नज़रअंदाज किया, उसके साथ न जाने का फैसला किया। ऐसे में ज़रूरत थी कि मुसलमानों के पास कोई पॉलिटिकल ऑप्शन हो, कोई पॉलिटिकल ताकत हो, और इन्हीं सबको सामने रखते हुए 2005 में मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उसका नाम रखा गया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। उसके बाद में उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और 2006 के पहले चुनाव में AIUDF को 6-7 सीटों पर जीत मिल जाती है। उसके बाद 2011 के आसाम चुनाव में शानदार जीत मिलती है। फिर 2016 के विधानसभा चुनाव में भी जीत मिलती है। 2021 के भी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिलती है। कंटिन्यू 3 मरतबा लोकसभा के चुनाव में जीत मिलती रही। 2000 चुनाव के लोकसभा इलेक्शन में पहली मरतबा मौलाना बदरुद्दीन अजमल धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और उनको जीत मिलती है, MP बन जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उनको जीत मिलती है और वो MP बन जाते हैं। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि उनके साथ 2 मजीद लोगों को जीत मिलती है। यानी 2014 में AIUDF के 3 MP जीत कर दिल्ली पहुंचे थे। 2019 में भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लगातार जीत मिलती है धुबरी से, लेकिन उनके 2 उम्मीदवार हार जाते हैं। 2024 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत सके और वहां पर कांग्रेस को जीत मिली। और इसलिए जीत मिली क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने धुबरी में जाकर ये कैंपेन किया, मुसलमानों को बरगलाया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल बीजेपी की बी टीम है, मौलाना को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। उधर ये मुसलमानों के जहनों दिमाग में भर दिया गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और उसका नतीजा ये हुआ कि 3 मरतबा के MP रहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल को छोड़कर धुबरी लोकसभा के लोगों ने कांग्रेस के रकीबुल हसन को वोट किया। रकीबुल हसन की जीत भी हो गई, लेकिन कांग्रेस सेंटर में सरकार नहीं बना सकी। अब 2026 का असेंबली इलेक्शन नज़दीक है और AIUDF वहाँ की एक मजबूत पार्टी है। मुसलमानों के इलाकों में AIUDF का मजबूत संगठन है, मजबूत कैडर है। और इसलिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को कहा कि अगर कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी आसाम में दोबारा सरकार ना बना सके, कांग्रेस की सरकार बने, तो हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना होगा। और अगर कांग्रेस नहीं लड़ती है, हमारे साथ अलायंस नहीं करती है, तो फिर कांग्रेस से चुनाव नहीं जीत पाएगी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का साफ कहना है कि हम जहां हैं खुश हैं, लेकिन कांग्रेस को झुकना पड़ेगा, तभी किसी को सरकार से हटाया जा सकता है। आसाम को अब 3 हिस्सों में समझिए। अगर आसाम की सियासत को आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त दीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आसाम का जो इलाका है वो 3 हिस्सों में तकसीम है। एक इलाका आसाम का अपर आसाम कहलाता है, दूसरा लोअर आसाम कहलाता है और तीसरा मिडिल आसाम कहलाता है। आसाम में कुल विधानसभा की 126 सीटें हैं। अब आसाम का जो अपर इलाका यानी अपर आसाम जिसको कहा जाता है, वो डिब्रूगढ़ का एरिया है, जहां मुसलमानों की आबादी तकरीबन 5% है, बकिया सारी आबादी नन मुस्लिमों की है। और यही लोग अपने आप को ओरिजिनल आसामी भी कहलाते हैं। जो भी आसाम का चीफ मिनिस्टर बनता है वो इसी इलाके से होता है। तरुण गोगोई का घर इसी इलाके में था, गौरव गोगोई उनके बेटे यहीं के हैं, या जो अभी चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका भी इसी इलाके से ताल्लुक़ है। यहाँ तकरीबन 40-43 विधानसभा की सीटें हैं और इन सीटों में मुसलमानों का एक भी ऐसा हलका नहीं है जहाँ मुस्लिम वोट 20% से भी ज़्यादा हो। इस इलाका में बीजेपी और कांग्रेस है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी अपर आसाम में नहीं है, ना उनका संगठन है, ना इनका कोई नुमाइंदा वहां से खड़ा हो पाता है। लेकिन पिछले 2 मरतबा के चुनाव में कांग्रेस को भी अपर आसाम में हिंदू मेजोरिटी इलाका में वोट नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद आसाम का दूसरा इलाका कहलाता है मिडिल आसाम। मिडिल आसाम में गुवाहाटी कैरी आता है, करीमगंज कैरी आता है और यहाँ भी तकरीबन 40-42 विधानसभा की सीटें हैं। और इस इलाका में 50% मुसलमानों की आबादी है, 50% नन मुस्लिम्स की आबादी है। इस इलाका में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF भी है और दूसरी पार्टीज़ यानी कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। और इन इलाकों में कांग्रेस बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बजाय बदरुद्दीन अजमल साहब के खिलाफ चुनाव लड़ती है और उसका नतीजा ये होता है कि बीजेपी इन जगहों पर भी वोट डिवीज़न का फ़ायदा उठाकर चुनाव जीतने में
कामयाब हो जाती है। असम का तीसरा इलाका है जिसको लोअर असम कहा जाता है, जिसमें बारपेटा आता है, धुबरी आता है, प्लासी का एरिया आता है। ये जो एरिया है यहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 70% है और 30% नन मुस्लिम आबादी है। ये इलाका AIUDF का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और इस इलाका में हमेशा AIUDF को 10-12 सीटों पर जीत मिलती है। 7-8 सीटों पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को करीमगंज यानी मिडिल आसाम के इलाका में जीत मिल पाती है और 2011 से कंटिन्यू AIUDF को 15, 16, 17 सीटों पर जीत मिल जाती है। 20 और 15 के बीच में उमूमन AIUDF को जीत मिलती रही है और आसाम जहां सिर्फ 126 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 65-66 सीटों पर जीत हासिल कर लेना काफ़ी है। वहां अगर किसी भी एक रीजनल पार्टी को 16-17 सीटों पर जीत मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का गढ़ है और वहाँ के लोग मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ही वोट करते हैं, उनको पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का रिलीफ वर्क उन इलाकों में बहुत ज़्यादा है, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के 50 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का तकरीबन 80 से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उसके अलावा मौलाना बदरुद्दीन अजमल की निगरानी में अजमल सुपर 40 चलता है, जहां गरीब बच्चों को नीट की तैयारी कराई जाती है, इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है यानी नीट और JEE की, और यहां से निकलने वाले बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो एजुकेशन के मैदान में मौलाना का बहुत बड़ा काम है, रिलीफ वर्क बहुत बड़ा है, सोशल काम जो है बहुत बड़ा हुआ है। आसाम के बारे में मैंने पहले कई मरतबा बताया कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो लोअर आसाम से होकर गुजरती है और लोअर आसाम का पूरा इलाका सैलाब की जद में आता है। विधानसभा का 2-3 एरिया ऐसा है जो पूरा उन्हीं नदियों के बीच में घिरा हुआ है और जब सैलाब आता है तो पूरा का पूरा इलाका बाढ़ की जद में आ जाता है। लोगों के घर बह जाते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं होती, खाने को कुछ मैसर नहीं होता और AIUDF के जो वर्कर्स हैं वो उन तक रिलीफ पहुंचाते हैं, उन तक सामान पहुंचाते हैं। अभी हाल ही में असम की BJP सरकार ने तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को बेघर कर दिया। जहां उनका घर बना हुआ था उनके घरों को बुलडोज कर दिया और अडानी की कंपनी को पूरा का पूरा इलाका असम सरकार ने दे दिया बिजली का पावर प्लान लगाने के लिए, सीमेंट का प्लान लगाने के लिए। और जब ये मौजूदा सूरत हाल है, मुश्किलों का सामना है, तो उनको कैंप बनाकर या उनको जो मौजूदा मदद दी जा रही है, उनको जो सहायता फराहम कराई जा रही है AIUDF की तरफ से, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, और सबसे बड़े पैमाने पर इनका काम है। बहुत सारी दूसरी NGO भी इनको मदद पहुंचाती है, लेकिन उन NGO की रियलिटी ये है कि वो जाते हैं 10, 12 या 100 लोगों के बीच में रिलीफ तकसीम कर देते हैं या जो फूड किट्स होता है वो तकसीम कर देते हैं। कुछ लोगों को टेंट बना कर दे देते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन आसाम के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं यही लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अभी SIR या जितने दूसरे मामले रहे उन सब में इन्हीं लोगों ने, ख़ासतौर पर AIUDF ने हमेशा किरदार निभाया और इसी वजह से लोअर आसाम और मिडिल आसाम के जो लोग हैं वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को पसंद करते हैं। अब अगर 2026 के चुनाव में AIUDF और कांग्रेस के बीच में अलायंस नहीं रहा, इत्तेहाद नहीं रहा, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, AIUDF चुनाव अलग लड़ती है, तो ये 50-60 ऐसी सीटें जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं BJP चुनाव जीत सकती है। 2016 में भी BJP ने इसी का फ़ायदा उठाया। 2021 में AIUDF और कांग्रेस का अलायंस था, लेकिन कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने का नतीजा ये हुआ कि BJP ने वहाँ पर चुनाव जीत लिया और ना होते यानी पॉसिबल ना होते हुए भी असम में BJP ने सरकार बना ली। और उसकी वजह थी कि कांग्रेस को जो भी वोट मिला ये इस अलायंस को मुसलमानों के इलाका में मिला। अब मैंने बताया कि अपर आसाम के इलाका मुसलमानों वाला नहीं है, सिर्फ 5% मुसलमान हैं। उस अपर आसाम के इलाके में कांग्रेस को 1 या 2 सीट मिल सकी, उससे ज़्यादा नहीं, और यहीं से कांग्रेस लूज कर गई। कांग्रेस को वही सीट मिली जहां मुसलमानों का वोट है, वो सीट AIUDF भी जीत सकती थी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी जीत सकते थे। इन्हीं इलाकों पर दोनों को कामयाबी मिली। 2021 का रिजल्ट उठाकर देखेंगे आसाम का, तो उसमें NDA अलायंस को 75 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस अलायंस को सिर्फ 50 सीटों पर जीत मिली। NDA में BJP को 60 सीटों पर जीत मिली, असम गण परिषद यानी AJP को 9 सीटों पर जीत मिल गई और UPPL को 6 सीटों पर जीत मिल गई। पूरा नंबर हो गया 75। इधर AIUDF और कांग्रेस का जो अलायंस था इसको सिर्फ
50 सीटों पर जीत मिल सकी। कांग्रेस को 29 सीटों पर जीत मिली, एआईयूडीएफ को 16 सीटों पर जीत मिली, बीपीएफ को 4 सीटों पर, सीपीआई-एमएल को 1 सीट पर जीत मिल सकी। ये पूरा नंबर होता है 50 यानी 50। कांग्रेस को ये जो 29 सीटें मिली अलायंस में, ये पूरा एआईयूडीएफ का इलाका, ये उनका वोट बैंक। अगर कांग्रेस अपर असम में 10 सीट भी ले आती तो फिर कांग्रेस की सरकार बन जाती, बीजेपी की सीटें और कम हो जाती। तो अब जो एक रियलिटी है कि कांग्रेस को हमेशा वही वोट मिलता है जहां मुसलमानों का वोट ज़्यादा रहता है, जहां मुसलमान नहीं वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिल पाता है। और अभी बिहार का रिजल्ट जो आया उससे ये मिसाल और मजबूत हो जाती है। बिहार में कांग्रेस जैसी पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली, और उन 6 सीटों का आप जायजा लेंगे कि कहां कहां कांग्रेस को जीत मिली, तो उनमें 4 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में थे और मुसलमानों के वोट से कांग्रेस को जीत मिली। किशनगंज में कांग्रेस के कमरुल हुदा को जीत मिली, और कमरुल हुदा को जितना वोट मिला पूरा 100% वोट वो मुसलमानों का मिला। रड़िया में कांग्रेस के आबिदुर रहमान को जीत मिली, और जो भी वोट मिला तकरीबन समझिए मुसलमानों का वोट मिला। फोरबिसगंज में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली, और उनको जितना वोट मिला उसमें तकरीबन आप समझिए 80% वोट मुसलमानों का, और इसी वजह से जीत हो पाए। इसी तरह दूसरी विधानसभा का मामला है कि जहां मुसलमानों के एक तरफा वोट की वजह से ही जीत हो पाई कांग्रेस की, वरना कांग्रेस को 1 या 2 सीट मुश्किल से मिल सकती थी। जहां मुसलमानों का वोट 15 या 20% से कम है, ऐसी कोई भी सीट ना तो आरजेडी निकाल पाई बिहार में, ना कांग्रेस निकाल पाई। तो यही मामला आसाम में भी हो चुका है। जो मुसलमानों का वोट बैंक है, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, जहां एआईयूडीएफ का गढ़ है, कांग्रेस वही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। उन्हीं इलाकों से कांग्रेस मुसलमानों को हराने की कोशिश करती है। लेकिन जो दूसरा इलाका है जहां से कांग्रेस को जीतना चाहिए था, वहां कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती है। अब इस मरतबा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पीटीआई-एनआई से बातचीत करते हुए साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस करने को तैयार हैं, हम सबको मुत्तहिद होना होगा, यूनाइट होना होगा। 2021 में भी हम मुत्तहिद थे, उसका नतीजा ये हुआ कि कम से कम 50 सीटें आई, मजबूत अपोजिशन मौजूद है, वरना ये हाल भी ना होता। लेकिन इस चुनाव के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ अपना अलायंस ख़त्म कर लिया। 2024 में कांग्रेस ने पूरा फोकस किया मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हटाने पर। कांग्रेस को दिक्कत इस बात से थी कि आसाम का एक मौलाना, एक दाढ़ी टोपी वाला पार्लियामेंट में आता है, वो तकरीर करता है, वो एमपी बना हुआ है, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो सका, और उसने कंटिन्यू मौलाना बदरुद्दीन अजमल को असम में जाकर बदनाम करने का काम किया। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च किया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने उस हार के बावजूद अभी हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, और 2026 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ वो लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी मीटिंग जारी है, उनकी पूरी टीम ग्राउंड पर लगातार काम कर रही है। और अगर कांग्रेस चाहती है कि आसाम में बीजेपी को वह हराए, वहां सरकार बनाए, तो यकीनी तौर पर कांग्रेस को एटीट्यूड से बाहर निकलना होगा, एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करना होगा। अगर कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि एआईयूडीएफ को वहां वोट नहीं मिल पाएगा, या 2024 का लोकसभा रिजल्ट कांग्रेस के लिए एक आइडियल बन रहा है, तो कांग्रेस की ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2024 में वहां के लोगों ने जो गलती की, इस बात को उन लोगों को खुद अच्छी तरह एहसास है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हम बहकावे में आ गए। क्योंकि जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है तो एआईयूडीएफ के वर्कर्स आते हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल आते हैं, हमें रिलीफ की ज़रूरत पड़ती है, बदरुद्दीन अजमल हमारी मदद करते हैं। हमारे बच्चे बदरुद्दीन अजमल के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वहाँ नीट की तैयारी करते हैं। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से तकरीबन कंटिन्यू 2016 तक हुकूमत की, लेकिन मुसलमानों के इलाकों में उसने कॉलेज नहीं बनाया, मुसलमानों को उसने यूनिवर्सिटी नहीं दिया, मुसलमानों के इलाकों में मेडिकल कॉलेजेस नहीं बनाए गए। पूरा डेवलपमेंट का काम अपर असम में किया गया, लोअर और मिडिल असम को छोड़ दिया गया। तो इस बात का वहाँ के लोगों को एहसास है, और ताज़ा सर्वे यही है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में जहां कहीं भी एआईयूडीएफ का कैंडिडेट खड़ा होगा, यकीनी तौर पर वहां के लोग इसी को वोट करेंगे। कुछ वोट कांग्रेस को भी जाएगा, क्योंकि कांग्रेस मौलाना के खिलाफ बस एक ही एजेंडा चला सकती है, और वो ये कि इनको वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन ये जो नज़रिया है, ये जो नैरेटिव है कांग्रेस या इंडिया अलायंस के पार्टियों का, इसको मुसलमानों ने अब रिजेक्ट कर दिया है। बिहार में मुसलमानों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बिहार में यही नैरेटिव दिया गया, इकरा हसन को भेजा गया, इमरान प्रताप गढ़ी रैलियाँ कर रहे थे,
افضال انصاری گئے، تمام لوگ یہی نریٹو چلا رہے تھے کہ آپ بہار میں اگر AIMIM کو ووٹ کریں گے تو BJP جیت جائے گی، آپ ہار جائیں گے، تیجسوی یادو چیف منسٹر نہیں بن پائیں گے، کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں نے اس نریٹو کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو سیریس نہیں لیا اور کہا جس کی بھی سرکار بنے مطلب نہیں ہے، ہم AIMIM کے امیدوار کو ہی ووٹ کریں گے، جہاں سے جن سوراج کا مسلم امیدوار کھڑا تھا اس کو ووٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا 18% ووٹ اور ہمارے میں سے کسی کو ڈپٹی چیف منسٹر بنانے کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ 2% والے کو ہیلی کاپٹر میں گھمایا جا رہا ہے، اس کو ڈپٹی چیف منسٹر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ غصہ تھا، اور یہ جو غصہ ہے اب آسام میں بھی پہنچ چکا ہے، وہاں لوگوں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ اب کانگریس کے لیے عقل مندی اور حکمت عملی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسے دوبارہ الائنس میں آ جانا چاہیے، مل کر چناؤ لڑنا چاہیے۔ اگر کانگریس یہاں بھی ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے یا اسے یہ ڈر لگتا ہے کہ AIUDF کے ساتھ اگر الائنس کر کے ہم چناؤ لڑیں گے تو اپر آسام میں ہمیں ووٹ نہیں ملے گا یا ہمارا ووٹ ختم ہو جائے گا، یہ امپوسیبل ہے، کیونکہ 2024 کے لوک سبھا چناؤ میں بھی کانگریس کو وہاں ووٹ نہیں مل سکا، کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 سیٹیں لوک سبھا کی ایسی تھی جہاں پر AIUDF اور کانگریس کے درمیان ووٹوں کا بٹوارا ہوا اور BJP کے لوک سبھا امیدوار کو جیت مل گئی۔ تو کانگریس کو اب AIUDF کو سیریس لے لینا چاہیے، ان کے ساتھ الائنس کر لینا چاہیے، اسی میں کانگریس کا بھلا ہے، کانگریس کی کامیابی ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی اسی میں بھلائی ہے۔ کانگریس اگر چاہے کہ مولانا بدرالدین اجمل کو منظر نامے سے ہٹا دے یا ان کے خلاف بھی نیگیٹو اور جھوٹا پروپیگنڈا کرے تو اب کانگریس اس ایجنڈا میں اس نریٹو کو سکسس دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، مجھے دیجیے اجازت، جوائن بٹن پر کلک کر لیجئے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ ایک انفارمیشن بھی آپ سب کو دینی ہے کہ ملت ٹائمز کی ڈاکیومنٹری ریلیز ہونے والی تھی 18 نومبر کو، لیکن ایڈیٹنگ میں کچھ تاخیر ہو گئی، کام جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے ایک ہفتے میں ملت ٹائمز کی یہ ڈاکیومنٹری جس کا نام ہے ویئر مائی فریڈم لائز انشاءاللہ تعالی ریلیز ہو جائے گی۔ اس ڈاکیومنٹری کا ٹریلر اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو یوٹیوب پر موجود ہے، جا کر اس کا ٹریلر دیکھ لیجئے۔ ملت ٹائمز کا ایک بیک اپ چینل ہے پبلک فیس، اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔